Hi students, hello, how are you? Let's start to the lectures. Welcome in Anand coaching classes. Chemistry, 12th science, important for the NEETs, IIT, NDA as well as the CET for 2021. Today we are learning classification of ligands, chemistry topics, coordination compounds, इससे classification of ligands, जिसके लिए आपका इंतजार था वो लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है, इसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो ऑल ऑफ यू पे अटेंशन, कीप योर टारगेट्स टू फोकस हियर ऑन द स्क्रीन, यूज द माय earphone to listen the voice. And one more things, when starting the next lecture, before starting the next lecture, you should be revise the previous lecture. Okay, so guys, let's start to the lecture. The name of the lecture is a classification of ligands, coordination compound here, topic number, chapter number 9 from your new textbooks. Okay, let's begin. It's a definition. What is the ligands? अब ligand किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो चीज आपको यहाँ पे लेविस एसिड, लेविस बेस. लेविस एसिड इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर and Lewis base is a electron pair donor. Electron pair donors are called as the ligands in coordination compounds. Coordination की दुनिया में हम उसको क्या बोलने वाले हैं? It is called as a what called? It is known as what? Ligands. What called? Ligands. Central metal atom. That is a, these belong to the p block elements. All these are the p block elements. P block elements are P block elements are, that is the D block element, they act as a central metal atom. They are variable valency. They are the transition element. Last two orbits are incomplete. यानी कि उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट्स. और ये इलेक्ट्रॉन कौन देने वाले हैं? These are donating by the donor. Donor that is a Lewis base. Lewis base को हम कोऑर्डिनेशन की दुनिया में क्या बोलने वाले हैं? They are called as ligands. यहाँ पे coordination bond is formed there by sharing both the electron by the ligand. यहाँ पे central metal atom कुछ भी करने वाला नहीं है. He has a skill, he has a knowledge, and one is an investor, he has a money. One using is a skill and one more using what is the finance is the money. And दोनों में यहाँ पे क्या हो रही है? Partnership. And this partnership is a called as a coordination bond. इनके बीच में जो बॉन्ड हो रहा है उनको उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. क्योंकि यहाँ पे one of the atom species, group of atom sharing the pair of the electron, and they are known as the ligand, that is the Lewis base. Understand? Do you got this? सबको समझ में आ रहा है? Okay. Next is the definition of the ligands. What is the ligands? It's a definition in front of you. What is it? The molecule or ion which are coordinated to the metal atom, central metal atom or ion in coordination compound are called ligands. The molecules or ion or species बोल सकते हो या group of the compounds coordinated उसके साथ जुड़ा हुआ है to the metal atom or ion in the coordination compounds are called ligands. Is known as what is the ligands. The molecule or ion which are coordinated to the metal atom or ion in the coordination compound are called ligands. This is the definition of the ligands. Let's guys, for once, for 4-5 seconds you should be close your eyes, and in front of your eyes take this screen and buy the definition immediately, or pause the video and buy it. Then go further. It is easy to understand the next part. Next, ligands are donor groups. Already I said that is ligands nothing but the Lewis base. They donate the pair of electron. हर एक लिगैंड के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. किसी के पास 1 पेयर और किसी का 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर्स. Ligands are donor group. For example, in this example here,
Na3 2 plus यार निकेल इज व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम. यहाँ पे कौन है? निकेल इज अ सेंट्रल मेटल एटम. Na3 is no any charge carrying, Cl minus carrying charge. Cl chlorine carrying minus charge, OH carrying minus charge, Cn carrying minus charge. But यहाँ पे Na3 जो this NH3 do not carry any charge. So NH3 6 NH3 are there. The NH3 इसमें NH3 में नाइट्रोजन कैरिंग व पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे हर एक नाइट्रोजन क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है. दैट्स व्हाई दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट इज अ लिगैंड. इसको हम क्या बोलेंगे? लिगैंड्स. यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, inside the square bracket NH3 attached to the nickel, this NH3 is known as what is a ligand. So ligand is equal to NH3. Oxidation number यहाँ पे कितना है? Is there 11? No, it is a Roman number 2. At the 2 plus charge there, that's why oxidation number is equal to 2. And central metal atom here nickel, and NH3 6 NH3 attached to the nickel. That's why coordination number of this compound is equal to 6. Okay, clear it? See the next example. Next example you can say clearly here. H2O molecule. यहाँ पे ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, तो वहां पे ऑक्सीजन कैरीज व्हाट इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखा ना, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आता है. Na3 H2O इसके एग्जांपल है. these are the example of sp3 hybridization. s orbital and what is the 3p orbitals are participate in a hybridization. They are the participate and form the H2 molecules. जहाँ पे lone pair of electron यहाँ पे repulsion भी होता है, आपको देखा होगा या नहीं होगा? देखो चेक करो, 11 में हो गया है. So cobalt is a central metal atom here. My mistake here. CO cobalt may be here. Central metal atom. Here must be what is the CO. CO. Here should be what is the CO. You should be correct. It's cobalt. Okay. Now see, CO is a central metal atom. H2O is called as the ligands. Oxidation number 6 H2O attached to the cobalt. So H2O, each H2O carry what? Pair of electron. That's why oxidation number of this compound is what is the oxidation number of this compound is equal to what? 6. And sorry, coordination number is equal to 6. And oxidation number here plus 3 charge here. आगे पीछे कोई चार्ज कैरियर नहीं है. दैट इज द +3. दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 3. फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे देखो क्या दिया था? निकेल NH3 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. एक कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर उसका ज्योमेट्री डिपेंड्स है, राइट? वो हम आगे पढ़ेंगे. उसका कलर कंपाउंड, कलर ऑफ कंपाउंड डिपेंड्स है. सेंट्रल मेटल एटम CO. H2O is called as the ligands. Next, oxidation number always written in Roman form. Remember this. Oxidation number always written in a Roman form. इसलिए वहां पे 2 लिखा था, वहां पे 3, जो भी था वहां पे कैसा रोमन नंबर में था. रोमन नंबर में भी आपको लिखना है. या कोई नॉमेनक्लेचर करते, नॉमेनक्लेचर में आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे सेंट्रल मेटल एटम जहां पे लिखा है उसके साथ ब्रैकेट में रोमन नंबर में उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया जाता है. Oxidation number written in a Roman form. Important points. Oxidation number always written in a Roman form. Okay. Next. Ligands are Lewis base and are either negative, positive ions or neutral molecules. Negatives are chlorine Cl minus है, OH minus है, NH3 है. NH3 is a neutral है, H2 कैसा है? Neutral है. Means ligands are the Lewis base. सब कौन है? Lewis base are there. Either negative or positive ion or neutral molecule. Negative or positive ions or neutral molecule. Remember this point related to the ligands. लिगैंड पढ़े तो लिगैंड के बारे में आपको पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज दे रहा हूं. नेगेटिव आयन लिगैंड्स. व्हाट आर नेगेटिव आयन? Cl साइनाइड बोलते हैं इसको, Cn माइनस. नेक्स्ट एग्जांपल NO2 माइनस नाइट्राइट. नेमिंग याद रखो, नाइट्राइट्स. आपको ये बाद में काम आने वाला है. बाद में नॉमेनक्लेचर में जितने भी एग्जांपल आप सॉल्व करें आगे के टॉपिक,
तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। CN माइनस मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइनाइड। NO2 इज कॉल्ड नाइट्राइट, NO2 माइनस नाइट्राइट। नेक्स्ट एग्जांपल OH माइनस हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द हाइड्रोक्साइड OH। नेक्स्ट NO3 माइनस नाइट्रेट, NO2 माइनस नाइट्राइट, NO3 माइनस नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, नाइट्राइट नाइट्रेट, NO2 NO3, NO2 NO3, both are minus minus, right? Nitrite nitrate, cyanide hydroxide, all they are negative ion ligands. Next here, next example is of fluorides, chloride, bromide, and what is the oxide, यहाँ पे 2 माइनस आ रहा है देखो, O2 माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड्स, ये तीनों chloride, chloride, bromide, they are from the halogen family. Oxide is there, is also negative, यहाँ पे carry charge कितना है 2 माइनस, बाकी सब में माइनस 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 1 था, राइट? नेक्स्ट पॉजिटिव आयन लिगेंड्स, इसका आपको इंतजार था। पॉजिटिव आयन लिगेंड्स कौन से है, न्यूट्रल तो पता चला, नेगेटिव पता चला, लेकिन पॉजिटिव आयन लिगेंड्स NO2 प्लस नाइट्रोसाइलियम, और नेम नाइट्रोसाइलियम, NO प्लस, देखो NO2 NO3 माइनस माइनस है, नाइट्राइट नाइट्राइट्स, राइट्स, NO2 प्लस, यहाँ पे NO प्लस, नाइट्रोसाइलियम, नाइट्रोसाइलियम याद रखो, N2H पर हाइड्रोजनियम इज ऑल्सो पॉजिटिव आयंस, हाइड्रोजनियम यहाँ पे चार्ज प्लस होना चाहिए। What is the hydrogenium, nitrosilium? Next, neutral ligands. What is the carbon monoxide CO, NH3, अभी भी अपने का अमोनिया, वाटर, NH2OH, हाइड्रोजिलामाइन, हाइड्रोजिलामाइन, NH2OH, NH2 प्लस पॉजिटिव है, OH क्या है माइनस है, दोनों मिला के क्या बन गया NH2OH, हाइड्रोजिलामाइन, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, या अमोनिया न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, H2O के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं है, NH2OH नॉट आल्सो क्या, नो एनी चार्ज, दैट इज NH2 प्लस है, OH माइनस है, दोनों मिला के क्या बन गया NH2OH, हाइड्रोजिलामाइन। नेक्स्ट CH3NH2, मिथिलामाइन, यहाँ पे कार्बन 1 अमाइन में, इसको हम डिटेल में वापस पढ़ने वाले, CH3NH2, मिथाइल अमाइन, मिथिलामाइंस, मिथाइल अमाइन या मिथिलामाइन, मिथिलामाइन या मिथाइल अमाइन इज अ टाइप ऑफ द अमाइन, जिसमें अमाइन में प्राइमरी अमाइन नहीं है, NH2 यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं, दैट्स व्हाई इसको जो प्राइमरी NH ग्रुप अटैच्ड टू द NH2 is a methyl amine या methylamine is also neutral ligands। कौन है ये न्यूट्रल लिगैंड्स, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजिलामाइन एंड मिथाइलामाइन्स। सो द नेक्स्ट नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स, जो आपका टॉपिक का आज के लेक्चर का मेन पार्ट यहाँ पे कौन है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स। अब तक आपने देखा लिगैंड्स आर डोनर ग्रुप, they are bonded with a centimeter atom, bond form is called coordination bonds, and ligands are there, ligands, positive ion ligands, negative ion ligands, neutral molecules. Now classification of ligands, classification depends upon the different, based on this classification based on number of donor atom, कितने एटम डोनेट करते हैं, एक पेयर डोनेट किया तो उसको क्या बोलेंगे, 2 पेयर डोनेट करते कोई कोई, इसी ग्रुप में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन आल्सो कैरी नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कैरी आल्सो नेगेटिव 2 पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस नाइट्रोजन भी दे सकता है और क्या ऑक्सीजन भी दे सकता है, किसी में कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, मींस दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डोनर आइटम are classified into polydentate ligand, dentate मतलब टिथ,
दांत उसका। मोनोडेंटेट लिगैंड, एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, पॉलीडेंटेट, पॉली मीन्स एक होता है, किसी को 2 टीथ है, 3 टीथ, 4 टीथ, एम्बी एक साथ दो दो आते हैं। एक ही कंपाउंड लेकिन दोनों साइड से अटैच है, जैसा नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी है वहां पे, तो दोनों भी क्या करेंगे, सेंट्रोमेर को अटैच करेंगे। पॉली में क्या है, उनके पास डेंटेड होते हैं लेकिन एक ही कोई क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है, मींस पॉलीडेंटेड लिगैंड एंड व्हाट इज द एम्बीडेंटेड लिगैंड्स, मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड्स। नेक्स्ट पॉली और मल्टीडेंटेड लिगैंड्स। पहला कौन सा, मोनो और यूनिडेंटेड लिगैंड्स। सेकेंड टाइप क्या है इसका, पॉली और मल्टी, ऐसे 2 बाय ट्राई टेट्रा हेक्सा डेका जैसा है वैसा सेम यहाँ पे पॉली और मल्टी डेंटेड लिगैंड्स, इन उसके टीथ अटैचमेंट कितने, बहुत सारे हैं। मोनो मतलब उनके पास एक ही अटैचमेंट रहेगा, यानी कि यूनिडेंटेड लिगैंड्स, उसके एग्जाम्पल देखेंगे। Here, mono or unidentate ligands. The ligand molecule or ion which has only one donor atom or one point of attachment, dentate मतलब क्या हो गया, attachment, and can coordinate with the metal ion, that is a central metal atom, at only one side, एक ही side से attach करेगा वो, in a complex is called mono or unidentate ligands, जिनके पास क्या है, only one donor atom here, donor pair of electrons, and only one attachment is there, and this attached to central metal atom only one side is known as, is this complex or this type of ligands are known as unidentate ligands या monodentate ligands. Unidentate और monodentate ligands समझ में आ रहा है कि सबको, ligand molecule और ion which has only one donor atom और one point of attachment, एक ही साइड से वो क्या करेगा, अटैच करेगा, या उसके पास क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, मतलब लेविस बेस ऐसा है कि उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना बॉन्डिंग में डालेगा, कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, राइट। This called is a mono or unidentate ligand. Okay. For example, OH, H2O, NH3, Cl. All these are example of mono or unidentate ligands. Poly or multidentate ligands. Poly और multidentate ligands. सब नेक्स्ट टाइप आ गया, poly और इसको बोलेंगे multidentate ligands. See the definition. The ligands molecules. Correction here. Here is a correction. The ligand molecule or ion which has 2 or more donor atom or point of attachment and can be linked to same metal ion in a complex using 2 or more donating site is called poly or multidentate ligands. Ligand molecule or ion which has 2 or more donor atoms, जैसा कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऐसा एक एटम के साथ ओ NO2 सपोज, NO2, यानी यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, donor atom or point of attachment and can be linked to same metal ion complex using 2 or more donating sites. यानी N के साइड से अटैच कर सकता है या O के साइड से भी वो अटैच कर सकता है. It can be attached N side or the O side. They are known as the poly or multidentate ligands. इनको क्या बोलेंगे, poly और multidentate ligand. किसी लिगैंड के पास 3 ऑक्सीजन होते हैं, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन, 4 हो गए, राइट. या किसी के NO2, NO2 यहाँ पे N नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, NO2 में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्या ऑक्सीजन, ये तीनों भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं. लेकिन किसको करना है, कौन सी साइड से करना है, नाइट्रोजन साइड से करना है या ऑक्सीजन साइड करना है, वो लिगैंड डिसाइड करेगा. वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कौन से टाइप का है वो डिसाइड करेगा कि कौन से साइड से अटैच करना है.
दे आर नोन एज अ पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। उनको क्या बोलेंगे? पॉली और मल्टीडेंटेड लिगेंड्स। हियर एग्जांपल diethylene triamines. Example, diethylene triamines. Here now here copper is a central metal atom. This is a copper is a central metal atom. Nitrogen, nitrogen, and this word nitrogen. These are the donating atom. नाइट्रोजन यहाँ पे डोनेट करने वाला है, ये नाइट्रोजन करने वाला है, ये भी नाइट्रोजन करने वाला है, राइट। यानी ये इसका 1 टीथ 2 टीथ और 3 टीथ है इसके पास। दिस इज फॉर्मूला फॉर द डाइथिलीन ट्राइमाइन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 दिख रहे हैं आपके पास। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कैरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नाइट्रोजन आल्सो कैरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस नाइट्रोजन आल्सो कैरिंग व्हाट? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके पास टीथ कितने हैं? 3 टीथ है, 3। इसको बोलते हैं डाइथिलीन ट्राइअमाइन। डाइथिलीन क्यों? बिकॉज बिकॉज CH2 कितने इसके? कार्बन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे CH2 है, तो इथिलीन हो गया है। 2 ग्रुप ऑफ इथिलीन, सो इट्स कॉल्ड डाइथिलीन। एंड ट्राइअमाइन NH2 ग्रुप देखो, NH2 NH वाले अमाइन वाले ग्रुप कौन है? NH2। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH है, इज कॉल्ड ट्राइअमाइन। नेमिंग समझ में आया कैसा दिया इसको? डाइथिलीन ट्राइअमाइन। व्हाई? बिकॉज CH2 means C2H4, 2 groups are there, एंड नाइट्रोजन वाले अमाइन वाले ग्रुप कितने हैं यहाँ पे? 3 है। NH2 यहाँ पे N जो है, दिस N इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन एटम, एंड रिमेनिंग 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने वाला है, ये टीथ है उसका। दिस हाइड्रोजन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। जिसके पास अमाइन में नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन के साथ हो गया एंड 2 बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बन गया NH2। ये क्या बन गया यहाँ पे देखो? NH2, राइट। यहाँ पे सेम NH2, लेकिन यहाँ पे देखो दो साइड, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन की जरूरत है। सो दिस नाइट्रोजन कैरीज व्हाट? 1 हाइड्रोजन विथ हिम। लेकिन ये भी कौन है? अमाइन ही है, NH2। पूरे कितने हो गए? ट्राइअमाइन, डाइथिलीन ट्राइअमाइन्स। डू यू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड्स? डाइथिलीन ट्राइअमाइन, डाइथिलीन ट्राइअमाइन। दिस इज द एग्जांपल फॉर द पॉलीडेंटेट्स और मल्टी। ये भी यहाँ पे फॉर्मूला देखो। नेक्स्ट एग्जांपल ट्राइथिलीन टेट्रामाइन्स। ट्राइथिलीन टेट्राअमाइन, ट्राइथिलीन टेट्राअमाइन्स। NH2 1 2 3 4 ठीक है, 4। और ट्राइथिलीन देखो, इथिलीन ग्रुप के CH2 कितने? 1 2 3, दैट्स कॉल्ड ट्राइथिलीन। and tetraamine 1 2 3 4 group of the amines। टीथ कितने? 1 2 3 4 टीथ है, राइट। मीन ये 4 डेंटेड इसके पास है। देखो यहाँ पे भी देखो, इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला NH2 यहाँ पे नहीं है, मतलब CH2 यहाँ पे भी क्या हो गया? CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इधर CH2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ गया? NH2। इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर द ट्राइथिलीन टेट्राअमाइन। ट्राइथिलीन टेट्राअमाइन इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसके डेंटेड दिखाया गया है। डेंटेड मींस सेंट्रल एटम की तरफ these nitrogens are attaching, इनके पास दे आर द डोनर, नाइट्रोजन डोनर एटम, नाइट्रोजन डोनर एटम मींस ईच नाइट्रोजन देखो 1 2 3 4 नाइट्रोजन आर देयर, दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास अटैचमेंट की टेंडेंसी है, दे कैन डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कॉपर मींस सेंट्रल मेटल एटम। ओके, इट्स एग्जांपल ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। समझा क्या? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, टैटो, एसीटेटो, आपका टैटो। ओके, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। So the example here,
दैट इज इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटोम कॉपर। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे आर डोनेटिंग ग्रुप। कैसे कैसे अटैचमेंट देखो यहाँ पे देखो, इसका डिटेल स्ट्रक्चर बाद में और भी आने वाला ही है। एसीटेटोम सी डबल बॉन्ड ओ, स्ट्रक्चर कैसा ड्रॉ करना है याद रखो। यहाँ पे CO2 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 कितने बार लेना है आपको? 4 बार। टेट्रा एसीटेटो, टेट्रा बोला ना 4। ओके, नेक्स्ट इथिलीन डायमाइन्स, इथिलीन डायमाइन्स एन, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2 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 कितने? 2 है। इथिलीन एन एन इथिलीन डायमाइन्स, 2 nitrogens are there. How many? 2 nitrogen. दिख रहे? It's called diamines. 2 nitrogens are is called the diamines. So attachments here. First attachments, second attachments, third attachment, fourth attachment और ये fifth और ये 6। इतने इसके attachment means 6 attachment. Ethylene ditetraacetato has 6 attachment, that is double bond। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्डिंग जिसके साथ है वो ऑक्सीजन अटैच करेगा नहीं, सिंगल बॉन्ड वही करेगा। आपको स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है देखो, C डबल बॉन्ड बोलो आपको 4 लेना है। टेट्रा मतलब C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O लिखा, राइट। और यहाँ पे 4 हो गए। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन और ए वाला लास्ट कार्बन, यहाँ पे के बीच में आपको नाइट्रोजन लिखना है। नाइट्रोजन 2 अटैचमेंट दिखाओ, यहाँ से बॉन्ड ये नाइट्रोजन के साथ जाएगा, ए नाइट्रोजन के साथ ये वाले कार्बन को बॉन्ड जाएगा, और ये कार्बन इसके साथ ये बॉन्ड, मतलब नाइट्रोजन के साथ कार्बन का बॉन्ड होना चाहिए। ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा, ये वाला कार्बन भी क्या करेगा? नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा। 2 हो गए यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट जो है ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड किया, ये कार्बन ने क्या किया? इसके साथ बॉन्ड। कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये कार्बन के बॉन्ड 4 कंप्लीट हो गए, ये कार्बन के बॉन्ड 4 कंप्लीट हो गए। अभी देखें नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होना चाहिए, तो नाइट्रोजन 1 2 बॉन्ड्स, 1 और 2 ये अटैचमेंट है, इसको पकड़ने का नहीं। तो 1 2 और ये क्या हो गया? 3 नाइट्रोजन नाइट्रोजन। और यहाँ पे देखो 1 2 और एक 3 हो गए। नाइट्रोजन कंप्लीट से बॉन्ड, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होना चाहिए, तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है क्या करेगा? इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस donate the pair of electron to the copper center meta atom. This oxygen donate the pair of electron to the copper, this oxygen donate the pair of electron to the copper, यानी कि 4 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे। एसीटेटो टेट्रा एसीटेटो में से ऑक्सीजन attaching to the copper, 4 ligand हो गए, and each nitrogen 2 nitrogens are there donating the pair of electron to the copper. That's why these 2 attachment, in this way total 6 attachment। तो ये कहाँ पे गया? मोनो में, इसमें आ गया पॉली, मल्टी आ गया, यहाँ पे मल्टी बॉन्डेड है, मल्टी डेंटेड है, मल्टी टीथ है इसके पास, 6 टीथ। नेक्स्ट आ गया पॉली डेंटेड लिगैंड फर्दर क्लासिफाई इनटू। अब पॉली में आपको कंफ्यूजन हो रहा था वहां पे, किसके बाद 2 डेंटेड है 3 डेंटेड है, लेकिन अटैचमेंट कैसे करेंगे? कोई किसी के बाद 6 देखा आपने अभी एग्जाम्पल में, राइट। लास्ट वाले एग्जाम्पल में कितना था? वहां पे 6 था, राइट। कितने थे? 6। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, EDTA शॉर्ट फॉर्म इसका, EDTA। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो, नाम बाइट करो, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जरूरी है, नीड प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉलीडेंटेट लिगैंड फर्दर क्लासिफाई इनटू bidentate, next is a tridentate and tetradentates। Bidentates, bidentate that is ethylene diamines, ethylene diamines के टीथ कितने रहेंगे? 2। डायमाइन यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, डाई मतलब 2, इसको बोलते हैं इन। डाइथिलीन ट्रायमाइन्स, डाइन, डाइथिलीन ट्रायमाइन्स,
कितने ट्राई अमाइंस मींस 3 अमाइन यहाँ पे 3 अमाइंस आर देयर हाउ मेनी 3 अमाइंस इज कॉल्ड ट्राइडेंटेट यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने 3 है तो इसके टीथ कितने रहेंगे 3 टीथ एंड ट्राई इथिलीनी टेट्रा अमाइंस ट्राइन टेट्रा मतलब 4 हो गए 4 teeth 4 attachments so polydentate ligands classified into bidentate tridentate and the tetradentate with their example next ambidentates अभी अलग आएगा 4 types ambi ambi का मतलब देखो क्या है what is the ambidentate ligands ambidentate ligands have 2 or more donor atom capable however only one donor atom utilized during the complex formation इसके पास 2 और मोर एटम डोनेट करने की कैपेसिटी है इट हैज अ नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन सपोज दोनों भी इनके पास है बाइडेंटेड है बट ओनली वन एटम कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास टेंडेंसी है लेकिन दोनों साइड से अटैच करेगा नहीं दे नॉट अटैच ऑन द बोथ साइड एक ही साइड किसी से अटैच करना पड़ेगा एक तो नाइट्रोजन साइड से अटैच करो नहीं तो ऑक्सीजन साइड अटैच करो लिगैंड इनके पास डेंटिल्स के बाद 2 है डेंटिल सपोज 3 है या 4 है लेकिन परमिशन इसको क्या होगा एक का ही होगा एम्बीडेंटेड लिगैंड्स हैव 2 और मोर डेंटेट्स बट ओनली वन डोनर एटम यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो यहां पे क्या होगा ओनली वन और इज ओनली वन डोनर एटम यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ही होगा NO2 जैसा एग्जांपल है यहाँ पे नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है राइट है दोनों एटम नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन आउट ऑफ 2 डोनर ओनली वन डोनर एटम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से एक ही यूज होगा यहाँ पे दोनों से जैसा कि आपने लास्ट एग्जांपल देखा था 6 तो 6 अटैच कर रहे थे 4 तो 4 भी अटैच कर रहे थे लेकिन यहाँ पे N और O दोनों भी उसके पास दोनों के पास क्या है lone pair of electron both have lone pair of electron but can donate any one एक की डोनेट करेगा इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगैंड्स देखो पॉली में ये टाइप है एम्बीडेंटेड लिगैंड्स बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड हो गया और ये बाइडेंटेड उनके पास लिगैंड डेंटेड है डोनेटिंग कैपेसिटी है लेकिन डोनेट नहीं कर सकते एक ही जाएगा बस SCN SCN has 2 donor atom कौन है यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन दोनों भी है लेकिन अटैच जब करेंगे सेंटीमीटर एटम के साथ तो दोनों में से एक ही अटैच करेगा दोनों को परमिशन नहीं मिलेगी CN साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन दोनों दोनों भी है यहाँ पे भी classification ligand into monodentates polydentate and what is the ambidentate ligand is a question to you classify following ligands into monodentate ligands polydentate ligands और क्या ambidentate ligand इसमें अभी क्लासिफिकेशन करना है NH3 अमोनिया इसके पास एक है मोनोडेंटेड लिगैंड्स CN साइनाइड्स एक है कार्बन नाइट्रोजन अभी एग्जांपल देखा उसमें एम्बीडेंटेड लिगैंड्स है कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से एक ही हो सकता है फ्लोरीन्स फ्लोराइड्स उसको मोनोडेंटेड लिगैंड्स NCS नाइट्रोजन और सल्फर दोनों है लेकिन एक ही यूज होगा इसको बोलेंगे एम्बीडेंटेड लिगैंड्स नोट डाउन करना बुक में क्वेश्चन आते हैं एग्जांपल में एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों है लेकिन परमिशन एक को ही मिलेगा दिस एम्बीडेंटेड इथिलीन डायमाइंस अभी एग्जांपल देखा था वहां पे बहुत सारे डायमाइन इथिलीन डायमाइंस डायमाइन यही बता रहा है तो आपको क्या पॉलीडेंटेड लिगैंड्स है राइट ऑक्जेलेटो कितने थे वहां पे ऑक्जेलेटो में 6 थे पॉलीडेंटेड लिगैंड्स ट्राइएमिनो ट्राइथिलीन अमाइंस ट्राइएमिनो ट्राइथिलीन अमाइंस ये कौन है पॉलीडेंटेड लिगैंड्स एग्जांपल अभी आपको पढ़ाया राइट if charge change then CONH3 6 3+ complex देखो लास्ट स्टार्टिंग में हमने ये देखा था क्या वर्नर्स 3 सेकंड लेक्चर में
CONH3 + एग्जाम्पल था, बट CONH3Cl3 ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है, चार्ज करी है, राइट, व्हाट इज चार्ज करी है, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। और ये क्या हो गया, कंपाउंड, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर चिलेट क्रैब मेक्स कंपाउंड मोर स्टेबल, यानी यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंप्लीट है, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर चिलेट, चिलेट मतलब अटैचमेंट उसके, क्रैब कंपाउंड को क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। सो CONH3Cl3 ये क्या है, कंपाउंड है, स्टेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है, ये तो स्टेबल नहीं होगा। और ये स्टेबिलिटी हम आगे और भी थ्योरी है, दो चार थ्योरी है, तो उस थ्योरी के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरीज वी आर एक्सप्लेनिंग विच कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, व्हाई इज स्टेबल, व्हाई नॉट स्टेबल, ये लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अभी C2O4 minus is there complex time, but CONH3 is a compounds is stable, this stability is arise because of the chelates, रिंग लाइट स्ट्रक्चर जितना रहेगा उतना वो स्टेबल बनता जाएगा। मेटल चिलेट्स, चिलेट क्रैब कॉल, दैट इज अ क्रैब क्लॉ, क्रैब मालूम है, खेकड़ा, चिलेट्स जिसके बाद चिलेट होते हैं, अटैचमेंट्स, एग्जांपल देखा था, इसके बाद 6 चिलेट है, लिगेंड्स multiple site of ligand along with a metal at metal form ring structure such as coordination compound are called metal chelates। सपोज कॉपर है, कॉपर के साथ कितने हैं, ऑक्सीडेटो में देखा, वहां पे ऑक्सीडेटो में कितने, 6 से अटैचमेंट्स, और पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर था, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, इज कॉल्ड द स्टेबल, एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ligands with center meta atom is known as chelation, means multiple side of ligand along with a metal form ring structure, such coordination compounds are called metal chelates, and process of formation of compound with chelates, यहाँ पे चिलेट है मतलब क्रैब लाइक स्ट्रक्चर है, ligands is called chelation, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चिलेशन। दिस डेफिनेशन नोट डाउन इन नोटबुक यूर, चिलेट कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल, जिसके पास स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या मोर स्टेबल होते हैं, राइट। इसके पहले एग्जाम्पल में देखा था, वहां पे यहाँ पे आपको दिखा दो एग्जाम्पल शेयर, इन अब वो क्लासिफिकेशन जहाँ पे आपने देखा था उसमें चिलेट का, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो ये रिंग लाइट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे रिंग है, जितने रिंग ज्यादा रहेंगे उतना वो क्या बनेगा, स्टेबल। ये कौन है, एथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिएटो, EDTA। लिगेंड से देखो अटैचमेंट 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, तो ये कंपाउंड के साथ मोर स्टेबल, इस कॉल्ड चिलेशन, ये प्रोसेस को बोलते हैं चिलेशन प्रोसेस, चिलेट इसके पास ज्यादा है, चिलेट मतलब अटैचमेंट, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे क्रैब है, देखो क्रैब खेकड़ा ऐसा, उसके पैर होते हैं बहुत सारे, एक ही साथ अटैच करते हैं, एक ही बॉडी का अटैच है, वैसा ही इसकी क्या है, पैर है, तो वो क्या करे, अटैच करेगा इसको, सेंट्रोमेर एटम को। Multiple site of ligand along with the metal form ring structures, such coordination compounds are called metal chelates, and the process of formation of compound with chelate ligands is called chelation. Note down in your notebook yours. That is a FeH2O6 3+, FeNH3 6 3+, यहाँ पे चार्ज देखो 3+ है, 3+ है, 3 माइनस और 3 माइनस, राइट। C2O4 यहाँ पे C2O4 ऑक्सीडेटो है, FCl6, in all the above ions the central ions Fe3+, the complex FeC2O4 3 minus has ऑक्सीलेटो लिगेंड्स, बाकी सब में आपने देखा था वहां पे रिंग लाइट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करने वाला कौन था, यहाँ पे इसको पीछे बुलाता हूँ, C2O4, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो सेंट्रल मेटा एटम के साथ ही क्या करेगा, 4 लिगेंड अटैच करेगा, ये न्यूट्रल है,
तो यहाँ पे अटैचमेंट खाली न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो एक ही है नाइट्रोजन, यहाँ पे H2O6 है, यहाँ पे C2O4, ऐसे कितने 3 है, लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 4 है, तो इसके रिंग लाइट स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाले C2O4, C2O4 वाले कितने के फॉर्म है 4 है ऐसे, तो रिंग लाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, तो रिंग लाइट स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो रहा है, तो ये जो दिख रहा है एक ऐसा का मोर स्टेबल और इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इसकी ज्यादा है। FeC2O4 3 माइनस इज मोर स्टेबल देन द अदर, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे न्यूट्रल है, ये सॉरी ये नेगेटिव आयंस है, तो ये जो नेगेटिव आयंस है ये है इनके पास एक एक चिलेट है, लेकिन यहाँ पे जो O है 4O, ऐसे कितने 3 है स्ट्रक्चर, 3 रिंग स्ट्रक्चर है, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ज्यादा फॉर्म होने वाला है, दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज द मोर स्टेबल। भाग जा हैज ऑक्सलेट्स लिगैंड व्हिच इज अ बाइडेंटेड लिगैंड्स, यहाँ पे कौन है ये बाइडेंटेड भी है, दोनों साइड से अटैच कर सकते हैं एंड फॉर्म द रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ मेटल चिलेट, मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन द नॉन मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स, मेटल के साथ है और यहाँ पे चिलेट है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल देन द नॉन मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स। Therefore, FeC2O4 3 minus the most stable complex among the from the above example, जो भी था वहां पे C2O4 यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ऑक्सिलेटेड लिगेंड्स है यहाँ पे, ये कौन है बाइडेंटेड है एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ, एंड मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स इज द मोर स्टेबल देन द नॉन मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स इज द मोर स्टेबल देन द नॉन मेटल चिलेट कॉम्प्लेक्स। और क्या है ऑक्सिलेटो लिगेंड्स व्हिच इज अ बाइडेंटेड लिगेंड्स एंड फॉर्म रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दे आर स्टेबल, दैट्स व्हाई FeC2O4 यहाँ पे ऑक्सिलेटो ग्रुप दिख रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है किसके साथ, मेटल के साथ है, दैट्स व्हाई इज अ मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। Next we are learning here coordination number. What we are learning here, coordination number, coordination number पढ़ना है, how to find the coordination number, what is the coordination number। फिलहाल थोड़ा सा आपको आइडिया आया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। अच्छा NH3 is attached to 6 NH3 attached to the cobalt, 6 NH3 attached to the cobalt, listen, that means 6 NH3 attached to the cobalt, that means coordination number of the this complex compound is what is 6, means coordination number means direct attachment of the ligand to the central metal atom, direct attachment of the ligands to the central metal atom, central metal atom के साथ जो attachment होती है कितनी attachment है, this indicate that coordination number of the compounds। और ये coordination number कैसा find करने का, how to find the coordination number, या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम अब भी स्टडी करने वाले। ओके सो फिलहाल पे अटेंशन ऑन बोर्ड ऑन स्क्रीन, कोऑर्डिनेशन नंबर द नंबर ऑफ लिगैंड व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड, देखो डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम और आयन। Number of ligand equal to donating lone pair of electron, that is number of donating group, donating group 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6, एक ही लिगैंड है, एक ही लिगैंड है लेकिन अटैच में उसकी इधर 3 है, 3 साइड से वो अटैच है तो वो 3 होगा, ऐसे 2 होंगे तो उसके कितने होंगे टोटल 6 हो गए। एक लिगैंड है, एक लिगैंड के पास 3 अटैचमेंट, 3 के 3 वो अटैच कर सकता है, और ऐसे 2 लिगैंड आ गए तो टोटल कितने अटैचमेंट होंगे सेंटीमीटर के साथ 6 हो गए, एक के पास 3 है तो 2 के पास कितने 6 हो गए, ऐसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा 6, क्योंकि नंबर ऑफ अटैचमेंट डायरेक्टली अटैचमेंट कितना है 6 है। नेक्स्ट रेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, मिनिमम 2 मैक्सिमम कितना 10, इसके ऊपर नहीं है, जनरली देखेंगे आप लोग तो वहां पे 4 और 6 ज्यादा दिखता है। नोट डाउन किया आपने, रेंज ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज फ्रॉम 2 to 10,
number of ligand is equal donating lone pair of electron, that is number of donating group, and number of ligands which are directly attached to the central metal atom or complex ion is known as coordination number of metal atom or the ion. अब कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दुनिया, कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स का भाषा, लैंग्वेज आपको अभी समझ में आ रहा होगा, राइट? धीरे 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके अंदर जा रहा होगा। और कॉमनली कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 4 6, रेंज उसका कितना है 2 to 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैक्सिमम 10 है। लेकिन जनरली देखेंगे बहुत सारे कंपाउंड उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4 to 6 होता है, 4 और 6 ज्यादा से ज्यादा दिखता है। तो कोबाल्ट देखो, फेरस देखो, यहाँ पे निकेल देखो, उनके 4 6 दिखेंगे आपको, राइट? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 आर यूजुअली ऑब्जर्व इन लाइटर ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन मेटल्स है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में आपको ट्रांजिशन एलिमेंट जितनी भी है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा वहां पे। सेंट्रल मेटल एटम जहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट जो भी है थोड़ा स्टडी करो उनका। कौन से एलिमेंट है वहां पे देखो, जो बहुत जरूरी है वो कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इज ऑब्जर्व इन हेवियर ट्रांजिशन मेटल। Transition metal D block elements are called the transition metals. They have variable valency, two cell, last two cells are incomplete है, उनको transition बोलते हैं। उनके वेरिएबल वैलेंसी है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर उनके वेरिएबल है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली कितना होता है 4 और 6, किसके लिए? फॉर द लाइटर ट्रांजिशन मेटल्स। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इनके लिए फॉर हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स, जिनका जो ट्रांजिशन मेटल क्या हेवी है उनके लिए कितना 8 है, और जिनका जो ट्रांजिशन मेटल क्या लाइट है, हल्के है वजन में, उनका वजन कम है, और भारी जो है उनका कितना होता है 8। देखो वी एन बी टी ए ये कौन है, सब लाइट है, राइट? यहाँ पे एफ देखो टी एफ 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। In case of metal chelate, coordination number is no number of pair of electron involved in the formation of bond. एक पेयर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 1, 2 पेयर है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 पेयर है कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4 पेयर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 between central metal atom and what is the ligands. This is important points. जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू number of pair of electron participate in the bond formation between the central metal atom and what is the ligand. Central metal atom and ligand. Central metal atom and ligand. That is Lewis acid, Lewis base, Lewis acid, Lewis base, Lewis base to Lewis acid. बॉन्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा? लेविस बेस टू लेविस एसिड, क्योंकि बेस क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, लिगैंड डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, and center metal atom exciting the pair of electron. Okay, for example CuEN2, यहाँ पे देखो इथिलीन डायमाइन है, यहाँ पे En का मतलब इथिलीन डायमाइन, इसके पास अटैचमेंट कितने हैं? Cu के पास देखो यहाँ पे En इथिलीन डायमाइन स्ट्रक्चर पहले आपने दिखाया था वहां पे मैंने, इथिलीन डायमाइन्स CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 means nitrogen 2 are there, nitrogen 2 on both side they attached to the copper. यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है? En का मतलब, En का मतलब क्या हो गया? NH2 CH2 CH2 NH2, नहीं एक साइड NH2 एक साइड भी क्या NH2, इसका शॉर्ट फॉर्म है टू राइट द इथिलीन डायमाइन, इथिलीनी डायमाइन, डाइथिलीन अमाइन्स, इथिलीन डायमाइन CH NH2 CH2 CH2 NH2, तो N यहाँ से अटैच हो गया, N यहाँ से हो गया, मतलब En2 है, लेकिन ये कैसा है? बाइडेंटेड है, En इज बाइडेंटेड, दोनों साइड से अटैच कर सकता है, मतलब ये 2 अटैचमेंट हो गया, और ये यहाँ पे भी En है 2En, ये 2 हो गया, टोटल कितना हो गया 4. दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉपर इज 4. डू यू अंडरस्टैंड इट्स? दे गॉट इट्स? समझा? पक्का समझा या कच्चा समझा? देखो
ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज इक्वल टू +2, यहाँ पे चार्ज कितना है +2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका 4, सिंस रीजन क्या है इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट, टोटल नंबर ऑफ अटैचमेंट, कितने अटैचमेंट देखो यहाँ पे फिगर में कितने 4 है। आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देंगे लेकिन डायग्राम नहीं देंगे, तो आपको यहाँ पे समझना इथिलीन EN का मतलब क्या हो गया, इथिलीन डायमाइन, दैट्स व्हाई इथिलीन डायमाइन कौन है, ये बाइडेंटेड एम्बिडेंटेड है, दोनों साइड से वो अटैच कर सकता है ना, बाइडेंटेड है यानी कि दोनों साइड से वो अटैच करता है, उसकी टेंडेंसी है, उसको दिया है परमिशन, राइट, मतलब दो इसके EN हो गया, ये दो EN के हो गए, टोटल कितना हो गया 4, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4, पॉलीडेंटेड एम्बिडेंटेड में दोनों में डिफरेंस है गाइस, पॉलीडेंटेड और एम्बिडेंटेड में दोनों में डिफरेंस है, ओके, गो बैक एंड सी दैट डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस। नेक्स्ट देखो AgN, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना होगा, ये नहीं है तो 2 हो गया, CuNH3 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, NH3 कितने 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, बिकॉज NH3 इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट H2O6, H2O भी कौन न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, सिंस H2O इज व्हाट न्यूट्रल। आर यू नोट डाउन दिस एग्जांपल्स, बुक निकाल के नोट डाउन करो फटाफट। FeC2O4, ऑक्सैलेटो आगे देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सैलेटो C2O4, वो कितने 4, 1 ऑक्सैलेट इज इक्वल टू 2 अटैचमेंट्स, एक ऑक्सैलेट मतलब क्या हो गया 2, ऐसे कितने हैं 3 है तो कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, ऑक्सैलेटो स्ट्रक्चर मालूम ना C, इसका स्ट्रक्चर देखो, ये C डबल बॉन्ड क्या होता है O, और एक O किसके लिए आता है, यहाँ पे एक O आ गया, राइट, C2O4, ऐसे कितने हैं, यहाँ पे और एक है C डबल बॉन्ड O, ओके, ये आ गया, यहाँ पे O है, ये O किसके लिए रहेगा, अभी ये O जो है ये किसके लिए रहेगा, अटैचमेंट के लिए रहेगा, यहाँ पे O है वो भी क्या रहेगा अटैचमेंट के लिए रहेगा, यहाँ पे सपोज सेंटर मेटा एटम जो भी रहेगा, सपोज यहाँ पे फेरस दिया है तो फेरस के साथ इसके अटैचमेंट है, ये Fe एक रिंग हो गया, ऐसा कितना एक रिंग हो गया ये पूरा, एक रिंग, ऐसे कितने रिंग है 3 रिंग्स है, तो 2 एक के कितने हो गए थे, एक रिंग में कितने 3 है, तो ऐसे 3 रिंग में कितना होगा 6, 3 रिंग में कितना आना चाहिए 6, समझ गया ये आपको, समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट सी, 3 auxiliary is equal to 6 attachments, that is the coordination number is equal to coordination number, ये रहा coordination number आपके सामने, coordination number is equal to 6, understands, एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गया, ओके, थोड़ा प्रैक्टिस करना, स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर देखो वहां पे कितने अटैचमेंट वो देखो, सेंटर एटम कौन है वो देखो, इसके ऊपर चार्ज क्या है वो देखो, एग्जाम्पल दिया तो आपके सामने सेंटर मेटा एटम कौन है, लिगैंड कौन है, लिगैंड की अटैचमेंट कितनी है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक टू योर एंट्रेंस एग्जाम। नेक्स्ट ईयर FeCO ओपन, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, ओ ऑक्सीलेटो, एक ऑक्सीलेट मतलब कितना होता है 2 अटैचमेंट दिखाया, राइट्स, 2 अटैचमेंट FeC2O4 3 2 माइनस, तो ये हो गया 2 2 2 कितना हो गया 6 टोटल, राइट्स, राइट्स, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ। ना क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, ये हम देखने वाले थे नेक्स्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, तो फिलहाल नाउ टिल 3 लेक्चर आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर हो गए,
तीनों लेक्चर रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना, इतना रिवाइज करो कि नींद में उठ के भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो भी पढ़ा है वो याद होना चाहिए सब। इसके साथ साथ all of you read the textbooks. If any doubt is there in from your textbook, you can ask me. Okay, now do your practice at homes, all of you guys. Take care, be safe. Okay, let's stop to your lecture now. Okay, bye bye, see you on next lecture. Classification of coordination compound. वहां पे आज क्लासिफिकेशन हम लिगेंड का देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बहुत सारा पढ़ना बाकी है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसा 2-3 लेक्चर में खत्म होने वाला नहीं है। सो बी रेडी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा के पूरा आपके दिमाग में डाल के ही रहूंगा। ओके, बाय बाय।